Yes, we were at IMF finally deciding to advance this loan, but at the same time insisted that the Indian government should introduce economic reforms in the economy, right? So this was, but what did they say? IMF ने हमें कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, बट आपको क्या करना होगा? As I told you, आपको अपने गेट्स ओपन करने होंगे. You have to start with a new economic policy. All right, let's move to point number 2. Now what the point number 2 is related to? So let me just write it down on the board. BOP crisis. Balance of payment अपने आप में एक चैप्टर है. Balance of payment की crisis अपने आप में एक चैप्टर है, और जब आएगा तो हम बताएंगे. लेकिन एक बात जो आपको यहाँ समझनी है वो क्या है? If I just remove this here, in the above point we talked about गवर्नमेंट का, हमारा कंट्री के अंदर ही, इनसाइड द कंट्री, हाउ मच वी वर एबल टू कलेक्ट द मनी एज रेवेन्यू एंड वेयर वर वी स्पेंडिंग. Now when I say collecting the money, it can only be done through taxes. We will study that in budget chapter, okay? And where are we spending this money? We are spending this money to pay salaries and pensions to government employees. We are paying this money for VIP, to maintain this VIP culture. उनके सारे खर्चे हम उठाते हैं, पार्लियामेंट का खर्चा, सारे VIPs का खर्चा, ये जो MPs MLAs एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10-10 गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, ये सब खर्चा. सो खर्चा मीन्स इतना स्टाइल VIP कल्चर was so prominent in the country. और ये तो अभी इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत चीज़ें कट डाउन हो गई. नहीं तो फॉरेन के लिए टूर पे चले जाते थे सारे के सारे MPs with their families. क्यों जा रहे हैं? ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं. What are the family doing with them? So अभी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई. We'll talk that in the budget chapter. So in the previous point we were talking about country के अंदर से ही जो अपनी कंट्री की करेंसी की कलेक्शन, रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग्स. BOP में we are talking about receipts and payments. BOP में we are talking about receipts and payments, but in terms of foreign exchange. Now when I say in terms of foreign exchange, I am trying to say that one country is trading with the other country. उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, राइट? कैसे होगी? When do we get payment from the outside country? When we export. When do we receive money? Sorry, when do you have to make the payment? When you import. This I'll just write it down clearly. Export and import. अब we are talking about the word crisis. Crisis का मतलब deficit. Deficit का मतलब clearly payments are more than the receipts. Means import is more than export. अब आप पूछेंगे कारण क्या था import ज़्यादा है और export कम? You remember last chapter में हमने पढ़ा था कि हम फॉरेन में टैरिफ कोटा लगा दिए. हमने कहा हम नहीं ट्रेड करेंगे भाई इनसे, ठीक? हम उनसे ना सामान मंगाएंगे, टैक्सेस लगा दो हैवी, पीपल शुड नॉट बाय देयर प्रोडक्ट, हम खुद बना लेंगे. लेकिन हमने क्या बनाया? हमारी खुद की क्वालिटी वाज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट वेरी गुड, बिकॉज वी हैड नो कंपटीशन. सो दैट इज व्हाई वी नेवर इम्प्रूव्ड अपॉन द क्वालिटी. And that quality, even if we try to sell it to abroad, sell it to the other countries, they were not interested to buy that. Poor quality, high price, right? So export तो बढ़ा ही नहीं. और याद है आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारी मेंटालिटी क्या थी कि हम एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं रहे और करेंगे ही नहीं, हम डील ही नहीं करेंगे. और हम क्या करेंगे? हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. जो हमारे पास है ना फॉरेन एक्सचेंज, इसको हम कंजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, खर्चा में इसको हम खर्चेंगे नहीं. ओके, पर हुआ क्या? वो तो निकलता रहा धीरे धीरे. क्यों? बिकॉज वी कुड नॉट प्रोड्यूस. जो बेसिक इसेंशियल आइटम्स थी जैसे क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, ये वो प्रोडक्ट हैं which we cannot produce on our own, even if we wish to. Even if we wish to, we just cannot do that. So we had to buy petrol from the other side, from the other Iran and Iraq and the other countries. So the foreign exchange was going away. अब वो कम हो रहा है. हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोचा बचा के रखेंगे और कमा लेंगे, ये कभी सोचा ही नहीं. ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि एक्सपोर्ट बढ़ा ले भाई. अगर यहाँ से पैसा इधर से निकल रहा है सो ऐड करने की भी कोशिश करो. नहीं कर पाए बिकॉज वी कुड नॉट विदस्टैंड
with the quality of the other country's product. This is what is BOP crisis all about. I'm sure it is clear. Let's read it from the notes. Point number 2. BOP crisis है क्या? वही मीनिंग जो मैंने अभी बोला. Crisis का मतलब BOP में deficit means difference between receipt and payments of a country on account of its economic transactions, on account of country's transaction with the other country's transaction. I said in the previous point we were talking about within the country पैसा आया और गया. इस point में we are talking about dealing with the other country, rest of the world. ठीक? Then था कितना? 1980-81 में current account deficit was 2,214 crores. But by the time we reached to 1991, it rose to 17,367. Now you will ask, मैम figures याद करने पड़ेंगे? हाँ जी करने पड़ेंगे. You may remember in an approximation manner. That's perfectly fine, but you have to remember बेटा, क्योंकि to make एक economics का आंसर लिख रहा है बच्चा, to make your answer impressive, you must do that. Right? So you may write 2,200 crores थे and approximately, and it reached to 17,000 crores approximately. This you can do it. Right? BOP deficit. Deficit in BOP arise when, कब हुआ? When payment for imports exceeds receipts from exports. आपको ये जो कोड्स है ना, ऐसे लिखती हूँ मैं, ये इसके नीचे लिख लेना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि जब आपने लेक्चर सुना था तब क्या वर्ड्स मैम ने बोले थे. Right? Then even after imposing, मैंने ये भी बोला आपको, heavy taxes, tariffs and quotas, there was a sharp rise in imports. क्यों? वो बेसिक चीजें तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे. अच्छा, देश में प्रोडक्शन अपने इंटरनली बढ़ा रहे हो तो when you are increasing the production, you are in a need of petroleum or crude oil, so और मांगते गए, लेकिन हमारे पास तो पैसा ही नहीं. On the other hand, there was a slow growth of export. इसको justify किया. क्यों slow था? Underline slow growth of export due to low quality को underline कीजिए and high prices. And international market में we had no demand because of that. Understood? Now moving to the third point, it is poor performance of public sector undertakings. ये तो हमें याद है, मैंने आपको जनरल पॉइंट भी बता दिया. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सब कुछ कर रहा था, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा था. द परफॉर्मेंसेस वाज वेरी पुअर. लॉसेस थे, उन लॉसेस को कैसे कवर, एक से अगर प्रॉफिट आता भी था तो दूसरी कंपनी का लॉस उसे एब्जॉर्ब कर जाता था. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर. इन द 40 years period, 51 to 90, public sector was assigned an important role to work for the economic development of India. However, except for few public enterprise, Navratnas, ठीक, थोड़े से few public enterprise, the overall performance was very disappointing. Navratnas we'll talk about later. Considering the huge losses, underline कीजिए huge losses incurred by a good number of public sector, मतलब majority losses में ही थे. The government recognized the need for making necessary reforms. So इस point में आपको समझ में आ गया हम क्या लिखने वाले हैं, keywords पता है. Fall in foreign exchange reserve, यही बोला मैंने, foreign exchange reserve कम हो गया. ठीक, कैसे? 91 foreign exchange reserve fall to lowest level. Reason बता दिया. अब बता रहे कितना कम हो गया, lowest level पर आ गया. And it led to foreign exchange crisis in the country. So इसका topic ये भी बन सकता है, foreign exchange crisis. इतना कम हो गया, पढ़ेंगे अभी. Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate. किस लिए? अगले 2 वीक के लिए भी import करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे. So to finance the import for more than 2 weeks. Second, जो भैया लोन ले रहे थे हम बार बार उसके इंटरेस्ट भी तो देना है. So we had no money. It was not sufficient to pay the interest, underline pay the interest that needs to be paid to international lenders जिनसे पैसा ले रखा था. So it's a crisis. मतलब इतनी बुरी situations थी, इसीलिए तो we had to take certain steps. Fifth point, all right. Fifth point and the last point need का inflationary spiral. अब आप मेरे से पूछेंगे मैम इनमें से कोई 3 कर लें? नहीं. This question can come for 5 marks also. 4 में आ सकता है. और बहुत बार वो स्पेशली ये लिख देते हैं how inflationary pressure was
ट्रीटेड एज अ नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तब क्या करेंगे, ये तो हमने याद ही नहीं किया था। सो बेटा जी, बुक से काट छांट कर नोट्स बनते हैं, नोट्स से काट छांट नहीं हो सकती। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, वही बात जो मैंने पहले बोली थी, स्पाइरल जब होता है मतलब बढ़ना, देखा है ना, स्पाइरल बाइंड कराते हो तो इस तरह से वो रोल करते हैं और वो इस तरह से उसी में चक्कर खा रहा है, बढ़ रहा है। सो इन्फ्लेशनरी, राइज इन प्राइसेस को इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रायर टू 91, डिस्पाइट गुड मॉनसून फॉर 3 कंसेक्यूटिव, मतलब कहना चाहता है कि अच्छी एग्रीकल्चर हो गई थी, हमारा सेक्टर बहुत इंप्रूव हो गया, तो इतना अच्छा मॉनसून आया और हमारे वैसे HYD सीड्स की वजह से 3 डेकेड्स तक हमने इतना कुछ प्रोड्यूस किया, स्टिल इन्फ्लेशन था। 3 consecutive 3 years there was inflationary spiral in the country. There was persistent बेटे जब भी इन्फ्लेशन वर्ड होता है ना, इसको हम सडन राइज ऑफ प्राइसेस को इन्फ्लेशन नहीं कहते, persistent rise in prices को इन्फ्लेशन कहते हैं। मैम प्लीज एलैबोरेट मोर, आप कहेंगे जी श्योर, क्यों नहीं। देखिए कि आप सपोजिटली रूटीन में अनियन मिल रहा था हमें 40 रुपीज kg, बहुत बार सुनते हैं ना, अब ना अनियन 100 रुपीज हो गया सडनली, 40 था 100, कैन बी कॉल दिस एज इन्फ्लेशन? नो, प्राइस तो बढ़ा लेकिन परसिस्टेंट नहीं, सडन। मे बी दिस हैज हैपेंड ड्यू टू लॉस ऑफ क्रॉप, डैमेज ऑफ क्रॉप, और मे बी स्टोरेज होर्डिंग की वजह से, देयर कुड बी मेनी एनी रीजंस, है ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस व्हिच कैन बी देयर। सो ये कोई सडन राइज नहीं हुआ। सडन राइज क्या होता, पहले अनियन 5 रुपए होते थे, फिर 7 हो गए, फिर धीरे धीरे 10 पर आ गए। अब देखो ना, अब जब मैं अपनी एज में बोलूँ, जब मैं छोटी थी तो अनियन 40 रुपीज kg नहीं होते थे, 2, 3, 4, 5 रुपए होते थे। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में, 20-25 सालों में क्या हुआ, ये बढ़ गए। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसलिए वर्ड क्या लिखा है, क्या लिखा है जी, परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस ड्यूरिंग 1956 to 91 कितना था, 14% तक पहुंच गया। इसे गैल्पिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, लिख लीजिए अपने पास। इन्फ्लेशन भी बड़ी तरह का होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे चल रहा है, ओके, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैल्पिंग इन्फ्लेशन निगलने वाला, इतना हाई, तो 14% इज गैल्पिंग, GALLOPING। सो गैल्पिंग निगलने वाला, बहुत हाई माना जाता है इसको, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 4, आई विल कवर क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस वीडियो, आफ्टर दैट वी विल वॉच द नेक्स्ट वीडियो। कौन से एलिमेंट्स हैं, अब नीड पता चल गई, अब आ गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पहले 3 चैप्टर्स में सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नहीं बता सकती क्या आ सकता है और क्या नहीं, सो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, ओके, क्योंकि पहले 3 चैप्टर्स की वेटेज भी बहुत हाई है। So we say what are the elements? New economic policy announced, underline or highlight, July 91. This will surely be tested in MCQ. July 91, remember. The main aim of the policy was, इसको circle करो, aim, अगर पेपर में what was the aim of this policy, so ये line है, it was to create a more competitive environment in the economy. क्यों करना था, इम्प्रूवमेंट करनी है ना, एफिशिएंसी, तो इतना लिख दिया। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसे होगा, कुछ बैरियर्स को हटाना होगा। कंपटीशन कैसे बढ़ेगा भाई, और लोग कैसे आएंगे, व्हेन वी विल बी अ लिटिल लिबरल इन आवर पॉलिसी, तो लिबरलाइजेशन वर्ड आ जाएगा बाद में। बात आ गई, 2 लिखना आपने, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बैरियर्स को रिमूव करना। देन 2 तरह से इसे क्लासिफाई किया गया है, 2 काइंड्स ऑफ मेजर्स दे आर देयर। कौन कौन से मेजर्स, इसके 2 मेजर्स हैं, समझिए। वन इज स्टेबलाइजेशन, इसको आप S से भी लिख सकते हैं और Z से भी। स्टेबलाइजेशन मेजर्स, राइट, 2 measures, and the second one is structural measure. अब it's something like, जब भी कभी हम कोई प्लान बनाते हैं, जैसे गोल्स ही बनाते हैं अपने, तो कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं। ऐसे ही जब ये मेजर्स बनाए गए, देयर आर सर्टेन शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड सर्टेन लॉन्ग टर्म मेजर्स। इसको ऐसे लेते हैं, सपोजिंगली मैंने आई एम ड्राइविंग ऑन द रोड एंड आई सॉ एन एक्सीडेंट। नाउ दिस पर्सन हु इज लाइंग ऑन द फ्लोर, बिकॉज द पर्सन हु मेट विद एन एक्सीडेंट,
उसको चोट लगी है, अब क्या करना चाहिए? दो तरह के ट्रीटमेंट होंगे। पहले तो इमीडिएट होगा, फर्स्ट एड जिसे बोलते हो आप, ठीक, फर्स्ट एड इमीडिएटली, ताकि उसका जो वुंड से ब्लड ब्लीड हो रहा है उसे रोकना फटाफट इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम आप इतना कुछ नहीं सोचते, आप क्या करोगे? यू विल फाइंड आउट अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ एंड यू जस्ट रैप इट शॉर्ट टर्म, और उसे इतना काबिल की खड़ा हो जाए या इन्फॉर्म करेंगे। तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होंगे? वहां पहुंच गया हॉस्पिटल, फिर वो एक्सरे भी करेंगे, वो स्टिचेस भी लगाएंगे, वो सब करेंगे। ऐसे ही कंट्री एक्सीडेंटल कंडीशन में थी, कंट्री में भी ब्लीडिंग हो रहा है वुंड से, अब उन्हें रेक्टिफाई करना है, अब उनकी एक्सरे करने लगो और लंबी लंबी पॉलिसीज नहीं, पहले तो शॉर्ट टर्म इमीडिएटली क्या क्या ठीक करे, तो शॉर्ट टर्म। इनमें से अंडरलाइन भी कर रखा है बेटे आपके पास, स्टेबलाइजेशन मेजर जो है दैट इज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म फटाफट से जो जल्दी हो जाए, एंड दिस वाज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। क्या है शॉर्ट टर्म? लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर 1, सबसे पहले जो बीओपी में प्रॉब्लम आई, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है और मुझे सामान खरीदना है, पहले तो फॉरेन एक्सचेंज फटाफट से चाहिए। अब मैं इसके लिए बैठ जाऊं और सोचो ऐसे करते हैं हम ना अच्छा प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे सॉरी, वी विल मेक गुड प्रोडक्ट, बहुत अच्छे बनाएंगे, फिर हम उसे बेचेंगे, मार्केट ढूंढेंगे, फिर हम वहां जाके बायर ढूंढेंगे, फिर हम बेचेंगे और फिर आ जाएगा। ये सोल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में क्या था? फॉरेन एक्सचेंज उधार दे दीजिए, जैसे $7 बिलियन दीजिए, हम अपना काम तो शुरू करें। शॉर्ट टर्म, okay, so correcting the weakness of the balance of payment by maintaining at least sufficient foreign exchange, इतना दे दो भी थोड़े वीक तक, जब तक हम लॉन्ग रन में नहीं आ जाते और वहां से पैसा नहीं आता तब तक के लिए आ जाए। दूसरा, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द कंट्री, टैक्सेस बढ़ रहे थे, तो जब हम टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे थे? क्योंकि हमारी अपने पास पैसा नहीं था। अब जब बाहर से उधार मांग लिया, अब नीचे वालों पर प्रेशर नहीं डालेंगे, नीचे वालों के पास प्रेशर नहीं डालोगे तो वो भी कुछ काम करेंगे, वो भी आगे ग्रो करेंगे, व्हेन दे विल ग्रो हम भी ग्रो हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या? टैक्स घटाओ, फटाफट फटाफट टैक्स घटाओ, बात समझ गए? सो दिस वाज द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म में क्या क्या किया? लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में अब एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके सोचने होंगे। ये तो आराम से सोचे जा सकते हैं, ये नहीं आज ही सोचना, अभी सोचना, अभी लगाना, नो, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए तरीके सोचेंगे, कैसे कर सकते हैं। चलो इस सेक्टर को, इस वाली सेगमेंट को प्राइवेटाइज कर देते हैं, इस एरिया में हम ये कर देते हैं, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग, तो क्या करना है? एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके। सेकेंड, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल, अब वो कंपटीशन, अब भैया ऐसे करते हैं, जरा बढ़ाते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन, लाते हैं इस कंपटीशन को अपने कंट्री में, सो माय कंट्री, माय पीपल विल आल्सो इंप्रूव अपॉन देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर विल बी अ कॉम्पिटिटिवनेस, और फिर क्या होगा? हम भी वी विल बी एबल टू विथस्टैंड विद द प्रोडक्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। सो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हो गए। तो दो मेजर्स की बात करेंगे आप यहाँ पर, वन स्टेबलाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल। नोट कर ले, फ्लो चार्ट बना लिया करें और उसमें मेंशन करें क्या? स्ट्रक्चर, जो स्टेबलाइजेशन है, दिस इज द शॉर्ट टर्म मेजर, दिस इज द लॉन्ग टर्म मेजर। इसमें भी कीवर्ड लिख लो। शॉर्ट टर्म में क्या? फटाफट फॉरेन एक्सचेंज इतना आ जाए कि भाई हम थोड़ा सा काम चला पाए। दूसरा, इन्फ्लेशन पकड़ लो भाई, लोग परेशान हो रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बंद कर दो, ये तो अनाउंसमेंट है ना, टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, इन्फ्लेशन हो गया। दूसरे में अब एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, वर्ड लिखो एफिशिएंसी, और कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनल कंपटीशन ले आते हैं, फिर लोग अपने आप काम करने लगेंगे और अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड क्वेश्चन। देन कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। इसके जो एलिमेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट? दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, keep watching and keep learning. Bye bye, take care.